So guys, this is our third lecture about carbonyl compound. So let us discuss about dehydration of aldol. Dehydration of aldol. Okay. So first of all, when we consider two molecules of acetaldehyde, they are react in presence of dilute NaOH or baryta. Then we can write when two molecules of CH3CHO react in presence of dilute NaOH or baryta, we will get CH3 CHOH CH2 CHO. This is the ultimate product. Okay. Now, if we heat this product, what will happen? From antiposition, water is removed. This will be CHO. Then here H is removed as H plus. Then this bond having two electron undergoes heterolytic fission, and by heterolytic fission this two electron density कहाँ पर आ जाएगा? इस बॉन्ड के ऊपर आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट दिस कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का कितना हाथ हो जाएगा? इधर दो, एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा मतलब 3, इधर एक 4 और एक हाइड्रोजन के साथ इधर है, तो मतलब 5 हाथ हो जाएगा. तो 5 हाथ तो नहीं हो सकता ना, तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऑक्सीजन attract electron density of the bonded electron pair towards itself. As a result, the bonding electron density undergoes heterolytic fission, and this electron density jumps over oxygen center. As a result, it will release as OH minus. So this H plus and this OH minus react to form H2O, and thereby, so as a result, due to removal of this water molecule, the ultimate product formed here is H3C CH double bond CH CHO. Okay, so this is here functional group. It is functional group, and the carbon attached with this functional group is denoted by alpha carbon, and again the carbon attached with alpha carbon is known as beta carbon. Okay, so now a double bond or unsaturation is present between alpha and beta carbon. That's why it is known as alpha comma beta unsaturated. Alpha comma beta unsaturated aldehyde. Alpha comma beta unsaturated aldehyde. Okay. Similarly, when two molecules of acetone react, in presence of baryta, what will happen? The product we will get
H3C, C, H3C, okay, OH, then CH, H, then COCH3, okay. Then if we consider if this compound heated, in presence of iodine, then this hydrogen removed as H plus. After removal of this H plus, the bonded electron density jumps over the sigma bond in order to create a pi bond. After the creation of this pi bond over the sigma bond, this carbon has 5 bonds, 1, 2, 3, 4 as well as 5. This carbon has 5 bonds. So in order to maintain 4 hand as well as these two bonded electron density does not heterolytically fused, because this CH3 group and this CH3 group shows plus I inductive effect, as well as oxygen considered more electronegativity as compared to carbon. Due to this, the bonded electron density shifts over the oxygen center. So after heterolytic fission, bonded electron density transfer over the oxygen atom to create one OH minus. So this OH minus attack this H plus, will attack this H plus to form one molecule of H2O, and here a double bond is created over this sigma bond. So the ultimate product form, it will be CH3 C, CH3 double bond CH, C double bond O and CH3, okay. So this is your functional group, which is keto group, and the carbon atom attached with this keto group is known as alpha carbon, and the carbon which is readily attached with this carbon atom is known as beta carbon, and again a product will form which is known as alpha beta unsaturated compound, alpha beta unsaturated ketone, okay, because it is a ketone, alpha beta unsaturated ketone. The name of this compound is mesithyl oxide, which is a major product, Besides this, again another type of product can be formed, but the amount will be very very less as compared to this major product. तो वो क्या है, CH3 C, इधर जो मैंने CH3 को ड्रॉ किया हूँ वहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के लिखा हूँ, ठीक है. देन इधर OH, देन CH, H, देन CO, CH3. पर अब देखो ये जो OH यहाँ पर इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, तो पहले का जो मैंने कंपाउंड इधर आया था वहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन निकला था. सो ये वाला रिएक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है एज H प्लस, एंड दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी undergoes heterolytic fission, and this electron density resides over this sigma bond to create a pi bond. So this carbon now contain 5 hand, 1, 2, 3, 4 along with 5,
ओके, सो कार्बन कैन ओनली बी कॉन्टेन ओनली 4 हैंड, माने कार्बन का कितना हैंड होता है, 4 हैंड होता है। तो इधर 5 हैंड होके बैठा है, नहीं हो सकता। तो देखो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर तो सब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, पर इधर देखो एक ही बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कॉम्पेयर टू कार्बन। सो क्या हुआ, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेट्रोलाइटिक फिशन होके OH माइनस होके निकल गया, ठीक है। तो दिस H प्लस एंड दिस OH माइनस combined to form one molecule of H2O, and besides this major product very small amount of minor product is formed, which is CH3 C double bond CH2 CH2 CO CH3. So this is minor product. So this is minor product. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। क्लियर। अब मैं इधर जो करूँगा वो होगा क्रॉस्ड एल्डोल, वो होगा तुम्हारा क्रॉस्ड एल्डोल। क्रॉस्ड एल्डोल का मतलब क्या है, देखो मैं पहले क्या किया था, 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्ट हुआ था, उसके बाद 2 एसीटोन मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्ट हुआ था। अब क्या होगा, एक एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन के अंदर रिएक्ट होगा, ठीक है। एक एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन के अंदर रिएक्ट होगा। तो देखो दोनों में अल्फा कार्बन है, दोनों में ही अल्फा कार्बन है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड हो रहा है दोनों तरफ, दोनों कार्बन ही अल्फा कार्बन है। इधर देखो एक अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हो गया तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो पहले मैं क्या करूँगा, H प्लस उस मॉलिक्यूल से H को निकाल दूंगा एज H प्लस। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ H एज ए H प्लस द कॉन्जुगेट बेस विल फॉर्म, कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा आ जाएगा। तो अगर जो कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा आया तो तुम देखो वो जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है कि नहीं है। अगर वो कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा रेजोनेंसिकली हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो क्या पता चल गया तुम्हें, द रेजोनेंसिकली हाइब्रिडाइज्ड कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल एज कॉम्पेयर टू एसिडिक काउंटर पार्ट। तो एसिड से ज़्यादा स्टेबल हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, तो इसीलिए मैं कोरेस्पॉन्डिंग एसिड को मैं बता सकता हूँ, तो वो एसिडिटी शो कर रहा है। तो देखो क्या हो गया, मैंने दोनों ऑप्शन ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन ही कर रहा हूँ। देखो CH2H C डबल बॉन्डो H, ठीक है। तो देखो पहले OH माइनस आया, OH माइनस अगर पहले इसके साथ रिएक्ट करता तो कॉन्जुगेट बेस क्या फॉर्म हो जाता, दिस बॉन्ड्स अंडरगो हेट्रोलाइटिक फिशन एंड द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जम्प्स ओवर दिस कार्बन एटम। एंड अगेन इफ अगर ये वाला हाइड्रोजन पहले निकलता, ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए, दोनों ही तरफ हाइड्रोजन के निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है, बाहर से जो मैं OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, तो वो OH माइनस हाइड्रोजन को लेके एज ए H2 निकल गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर चला आया। तो एसिटल्डिहाइड से मैं कॉन्जुगेट बेस क्या पाया हूँ, एसिटल्डिहाइड से मैं जो कॉन्जुगेट बेस आया मेरा वो हो गया तुम्हारा CH2 माइनस C डबल बॉन्डो H, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा H2C माइनस C डबल बॉन्डो CH3, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो कितना ऑप्शन है, क्या क्या हो सकता है।
अगर मैं कंसीडर करूं ये वाला कॉन्जुगेट बेस, दोनों ही कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। कैसे? देखो ये इधर अगर आ गया रेजोनेंस में तो ये इधर ऊपर उठ जाएगा, अगर ये इधर आ गया तो ये भी ऊपर उठ जाएगा। तो अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस व्हिच इज रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड, अगर ये कॉन्जुगेट बेस को मैं इधर ड्रॉ करूं तो क्या हो सकता है? तो ये क्या कर सकता है? देखो रिएक्शन मीडियम में एसिटल्डिहाइड भी है, एसीटोन भी है, एंड मैं क्या कंसीडर इधर कर रहा हूं? द conjugate base obtained from acetaldehyde after the removal of H plus। सो देखो रिएक्शन मीडियम में तुम्हारा एसिटल्डिहाइड भी है और रिएक्शन मीडियम में तुम्हारा एसीटोन भी है। ठीक है, रिएक्शन मीडियम में तुम्हारा एसीटोन भी है। ये ऐसे मत लिखना H3C, ओके, बिकॉज द बॉन्ड विल बिटवीन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड हो। तो देखो दोनों के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपने तरफ खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कॉम्पेयर टू कार्बन अपने आप खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? इसके अंदर कार्बन है, ये कार्बन है, और इसके अंदर ये कार्बन है, मतलब ये डेल प्लस ये डेल माइनस, ए डेल प्लस ए डेल माइनस। तो तुम इजीली क्या पा गए? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन को भी पीछे से मार सकता है या इस कार्बन को भी पीछे से अटैक कर सकता है। तो ड्यू टू दिस अटैक कार्बन का 5 हाथ हो जाएगा। तो इसीलिए तुम क्या कर सकते हो? ये जो मैं पहले ही समझा दिया हूँ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आया? यहाँ से आया CH3, CH ऊपर दो O माइनस, उसके साथ क्या है? ये CH2 C डबल बॉन्डो H। ठीक है, देन ये क्या लेगा? ये एक H प्लस ले लेगा। कहाँ से? ये जो पानी का जो एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी निकला है वहाँ से H प्लस ले लेगा। तो क्या होगा? ये पानी से एक H प्लस ले लेता है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है OH के ऊपर चला आया एज OH माइनस। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये पहले ड्रॉ करो CH3 C CH3, ओके। ये वाला बॉन्ड तुम्हारा ऊपर चला आया O माइनस। उसके बाद ये किसके साथ अटैच्ड है? CH2 के साथ अटैच्ड है। उसके बाद C डबल बॉन्डो H। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा? H2O। तो देखो H2O से ये जो O माइनस है H प्लस को ले लिया और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर ऑक्सीजन के ऊपर चला गया एज OH माइनस। तो देखो तुम्हारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया। कब? अगर तुमने इसको इस कॉन्जुगेट बेस को अगर कंसीडर किया। अब देखो तुम इस कॉन्जुगेट बेस को कंसीडर कर रहे हो, इस कॉन्जुगेट बेस को, इसको। तो अगर तुमने इस कॉन्जुगेट बेस को कंसीडर किया, 2 नंबर का जो कॉन्जुगेट बेस है ये कॉन्जुगेट बेस, अगर तुमने इस कॉन्जुगेट बेस को कंसीडर किया तो ड्रॉ करो क्या हो रहा है? CH2 माइनस C डबल बॉन्डो CH3। अब देखो इधर भी दोनों ऑप्शन है, क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो क्या हुआ? ये O माइनस दिस इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस को कंसीडर करूं तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। किस किस के साथ? एक एसिटल्डिहाइड के साथ एंड एक एसीटोन के साथ। तो अगर ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा?
CH3 CH ऊपर चलाओ O माइनस हो गया, एंड ये आ गया तुम्हारा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये O माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा किसके अंदर से, H2 मॉलिक्यूल के अंदर से, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अब देखो अगर तुम एसीटोन मॉलिक्यूल को कंसीडर करो तो क्या होगा, ये देखो एसीटोन मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया, डबल बॉन्ड O, ये माइनस इसको, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक कर सकता है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। सो एज ए रिजल्ट द अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी H3C C H3C, ऊपर दे दो O माइनस, देन ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक बात समझ लो, ड्रॉ करने के टाइम में जिस मोइटी के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को वो पीछे से वार करेगा, वो पहले ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ड्रॉ करने के बाद उस कार्बन से जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैच्ड हुआ है उसको ड्रॉ करना। ये पहले मत ड्रॉ करना, पहले ये वाला ड्रॉ करना, उसके बाद ये। तो देखो एक ही चीज़ है, H2 मॉलिक्यूल से H प्लस लेके OH हो जाएगा, और इस OH माइनस, मतलब कितना प्रोडक्ट हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 प्रोडक्ट हो गया, मतलब 4 प्रोडक्ट हो गया। एक हो गया एल्डोल 1, एक हो गया एल्डोल 2, एक हो गया एल्डोल 3, एक हो गया तुम्हारा एल्डोल 4, मतलब चारों प्रोडक्ट। अब ये चारों प्रोडक्ट में जो चारों प्रोडक्ट है, चारों प्रोडक्ट इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता है। कुछ दोनों प्रोडक्ट ज़्यादा होता है और कुछ दोनों प्रोडक्ट कम होता है। क्यों? दिस डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा वाला रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये कॉन्जुगेट बेस का रिएक्टिविटी ज़्यादा है या ये कॉन्जुगेट बेस का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है एज वेल एज स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंटरमीडिएट बन और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कॉन्जुगेट बेस है, अगर स्टेबल हो गया तो वो रिएक्टिविटी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं स्टेबिलिटी शो करता हूँ। देखो ये जो रेजोनेंस हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, ये रेजोनेंस बहुत ही आसान तरीके के साथ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ऊपर चला जा रहा है। पर इधर देखो ऐसा रेजोनेंस इधर आसान नहीं है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रहा है, पर ये जो CH3 है, ये CH3 क्या कर रहा है ना, दिस CH3 shows प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट। एंड प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, या ये है इलेक्ट्रॉन डोनेशन भाया सिग्मा बॉन्ड। अगर ये CH3 ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर ये CH3 ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो रेजोनेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड होगा। इसीलिए ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस वाया रेजोनेंस जितना स्टेबल हो रहा है, ये उतना स्टेबल नहीं हो रहा है। अब ये जो चारों प्रोडक्ट हो रहा है तुम्हारा, ये चारों प्रोडक्ट का कॉम्पेरेटिव स्टेबिलिटी वो दूसरे लेक्चर में आएगा। तो कौन सा कॉम्पेरेटिव स्टेबिलिटी मतलब कौन सा वाला ज़्यादा होगा, कौन सा वाला कम होगा, वो दूसरे लेक्चर में आएगा।